Days after Rahul Gandhi's remark on Hindus inside the parliament, suspended BJP leader Nupur Sharma has hit out at Rahul Gandhi. Nupur Sharma has said that it is an attempt to wipe out Sanatanis. Let's take a look at what exactly she said. जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो। दो बात कहूंगी, जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। CNN News 18 senior editor Pallavi Ghosh is joining us on the broadcast over this development. Pallavi, Ashoka Nupur Sharma is finally back to the limelight. She is now saying that if Hindus were in danger in this country, I would not have been hiding for 2 straight years under the security. So very quickly, the backdrop is that Nupur Sharma was suspended from the BJP. She's under intense security because of comments she made on a live show. And therefore, that anger and that hurt, I think, is coming out. And she's not taking Rahul Gandhi's name, but clearly it is at his comments, which he recently made in Ahmedabad, on the fact that how the winner from Faizabad Lok Sabha, Avdesh Kumar, has taught a lesson to all those who were a part of the Ram Janmabhoomi movement. That has got the BJP very angry. But more than that, she's also making a reference to his speech inside the Lok Sabha also, if you remember, in the motion of thanks, calling many Hindus Hinsak. That had evoked a very strong response by no less than the Prime Minister. These comments of Rahul Gandhi, both inside the Lok Sabha as well as in Ahmedabad, I think is going to be the focal point of the BJP's consistent attack on Rahul Gandhi and his politics, where the Congress party will be labelled as being anti-Hindu. Right, Pallavi, also, on one hand, we have seen Nupur Sharma being suspended from the party over her controversial remarks that she made in the past. At the same time, Congress is continuously defending the kind of remarks that Rahul Gandhi clearly made inside the House of the Parliament. Yeah, well, it's actually the Congress is an emboldened party at this point of time, and by does the Congress, the entire India bloc. And they feel that the biggest lesson that they have been able to teach the BJP, according to them, are twofold. One, Faizabad, in which the Ayodhya Assembly segment falls, that has been won by the Samajwadi Party. And second, the entire Ram narrative doesn't seem to have worked for the BJP, which is why the SP has managed to perform well as a part of the India bloc in Uttar Pradesh. And this is what is being their fulcrum, that, you talk about Ram, you talk about religion so much, but that hasn't benefited BJP politically or electorally. And that's the reason why the India bloc entirely is emboldened and will keep on taking pot shots at the BJP's politics of religion, as the opposition parties call it. Definitely. Pallavi, and 2-3 strategic things that we saw this time around in the parliament. First up, the Ayodhya MP sitting at the front seat right beside Rahul Gandhi. That was something to work BJP. On the other hand, Rahul Gandhi bringing up the pictures of religious, religious figures inside the parliament, raising it, and the recent drill that he has started while posting his videos on his social media profile, having Lord Shiva's picture right behind him. It is something to work BJP, certainly. It's not going to go down very well with them. Well, and behind this is the fact that Rahul Gandhi is making the point, and so is the Samajwadi Party, that you kept on talking about Ram and you thought Ram is going to bail you out. But Ram has not. I mean, if that was really the case, then BJP should have swept Uttar Pradesh, which hasn't really happened. With 37 seats, the Samajwadi Party is certainly, along with the India bloc, making the point that, at the end of the day, it's a development which matters, not just playing up the religion card. And I don't think the Samajwadi Party or even the Congress Party would want to forget it in a hurry. And not just, defeating Smriti Irani from Amethi, performance well for the India bloc in Uttar Pradesh. These are big victory points which the India bloc claims. And, you are going to see this, especially in the run-up to the UP elections, because, they've kind of smelled blood, and the India bloc feels that they can do well. I mean, they can defeat the Yogi Adityanath factor as well as the Ram factor, in the sense of which is being used by the BJP. And I wouldn't be surprised. I mean, Rahul Gandhi has always used religion when it suits him, calling himself a Janeodhari Shiv Bhakt, having a picture, as you pointed out, of Shivji whenever he's giving those kind of sound bites, when he talks about Abhay Mudra.
these are nuances which are now being picked by the India bloc against the BJP. Right. Pallavi, please stay on with us. We have Congress's Udit Raj ji joining us on the broadcast. Udit ji, thank you so much for speaking to CNN News 18. आप हमें ये बताइए कि पूरे 2 साल बाद नुपुर शर्मा जो हैं वो आई हैं सामने। उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया है राहुल गांधी का, लेकिन उन्होंने एक निशाना साधा है कि हिंदू हिंसक नहीं है। अगर हिंदू हिंसक होते तो 2 साल तक इस सनातनी बेटी को छुपकर सिक्योरिटी के पीछे नहीं रहना पड़ता। आपका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन रहेगा? आप लोगों ने एजेंडा चलाया है कि जो चर्चा से बाहर हो गया उसको चर्चा में लाना, बीजेपी का एजेंडा चलाना। अरे कौन सी बड़ी नेता है कि जिसका जवाब हम दें भाई? क्यों जवाब दें? एक बात है, क्या आपको किसानों की समस्या, इस देश में करोड़ों लोगों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, नीट की समस्या के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होता? ये कोई सवाल जवाब है? बताइए क्या है, बताइए कि वो कोई चीफ मिनिस्टर है कि राहुल जी के बारे में वो बोले तो उसका जवाब हम देते रहे? तो ऐसे ही जब हम लोग बोलते हैं तो मोदी जी के बारे में तो हम लोगों को भी उस तरह से उभारिए, ये कोई बात नहीं होती। अरे बी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, इतना यू जस्ट रनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उदित राज जी, मैं भी अपना होमवर्क करके आई हूँ। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास्ट में बोले हैं, उनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन आपकी पार्टी से रोज कुछ ना कुछ हिंदुत्व के ऊपर टारगेट करके कमेंट्स आते हैं, चाहे बोको हरम से या आईसिस से उसका कंपैरिजन करा जाए, किसी बीमारी से कंपैरिजन करा जाए। क्या आपकी पार्टी ने इस तरीके का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक लिया है? देखिए, ऐसा है कि रोज जब इस देश के प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र हो जाएंगे, टोटी निकाल ले जाएंगे, तो किसके लिए? हिंदुओं के ही लिए टोटी कौन निकाल कर ले जाएगा? नल की टोटी वो नहीं बोलते हैं क्या? ये वो आपको याद नहीं आता? एक नहीं हजारों ऐसी चीजें निकाल करके दे दिया जाए जो प्रधानमंत्री का अस्तर है। आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं वहां संसद में? जब राहुल जी कहते हैं मैं कंप्लीट हिंदू, आप नहीं हैं, हिंदू बाहर हैं, हिंदू और भी हैं, तो मोदी जी कहते नहीं आपने पूरे हिंदू समाज को बोला। इतना झूठ के ऊपर कोई डिबेट हुआ है कभी? है आपकी हिम्मत इस झूठ के ऊपर? किसकी भैंस छीन लिया है? 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे, मुसलमानों को हिंदुओं का संपत्ति दे देंगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। किसका मंगलसूत्र छीना ले गया? बताइए। राज जी, व्यक्तित्व चोट करना और किसी धर्म के ऊपर चोट करना एकदम डिफरेंट बात है ना? तो हम कर रहे हैं, जिसकी कोई लोकस स्टैंड नहीं उसका जवाब हम देते फिरते। ठीक है उदित जी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। वीएचपी's विनोद बंसल इज आल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू CNN News 18। नुपुर शर्मा ने पूरे 2 साल बाद टिप्पणी करी है इस चीज के बारे में कि अगर हिंदुत्व से किसी को खतरा होता या अगर हिंदू हिंसक होता तो इस सनातनी बेटी को 2 साल तक चुप कर नहीं रहना पड़ता। आपकी इस चीज पे क्या राय है? निश्चित रूप से ये देश की सच्चाई है। हिंदू समाज हमेशा से अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए संकल्पित तो रहता है, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेता। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से हिंसक वृत्ति के लोगों के साथ में, हिंसक मानसिकता के साथ में जिस तरह से खड़ी है और लगातार हिंसा का हमला हिंदू समाज पर करती आई है, शुरू से हिंदू के प्रति जो घृणा, विद्वेष और जो अटैकिंग मोड जो है कांग्रेस का रहा है, जब से ये कांग्रेस 2.0 आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसने हमेशा से हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की है। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह से जो हिंदुओं को घृणा, नफरत और असत्य और जाने क्या क्या बोल गए, उनके उस टैक्स को संसद ने तो एक्सपंज कर दिया। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में इन्होंने अयोध्या के ऊपर, अयोध्या आंदोलन को जिस तरह से कलंकित करने की कोशिश की है, अयोध्या के पवित्र धरा को ये जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, उसके इन बयानों को लेकर के कांग्रेस को भारत की जनता एक्सपंज करेगी जल्दी। अयोध्या की चर्चा पे तो विनोद जी बात एकदम खत्म हो गई ना? जनता ने तो अपना जवाब बता दिया इस इलेक्शंस में कि अयोध्या की जनता क्या चाहती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी, विनोद जी सवाल सुनिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमें पता है आपकी आइडियोलॉजीज किस तरफ लाई करती है, लेकिन उसके अलावा भी हिंदुत्व का झंडा लहराने की जो रोल है वो आपको किसने दिया? आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो हिंदू हैं और बाकी सब जो है वो हिंदू नहीं है? देखिए,
जो हिंदू हैं वो तो हिंदू हैं, लेकिन ऐसे जो लोग कथित हिंदू हैं उनको ये बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं, हम भी जनेऊधारी हैं, हमारा ये गोत्र है। बार बार बताते तो हैं लेकिन चलते नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का यही है कि ये जो दिखने वाले हिंदू हैं, जो बोलने वाले हिंदू हैं, वो करने वाले हिंदू नहीं है, मानने वाले हिंदू नहीं है। समस्या ये है कि जिनके जो पिता हैं वो जो उनके दादा हैं वो फिरोज खान है, और जिनकी माँ है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, और फिर भी इसके बाद वो बेटा कहता है कि मैं तो दबंगई से कि मैं तो हिंदू हूँ। भाई कौन मान लेगा? मुझे बताइए कि दादा के मजार पे आज तक गए क्या? नाना के साथ क्या क्या थे, क्या नहीं थे, वो कौन थे, ये सबको बहुत कुछ व्हाट्सएप पे उनमें अपने सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो मैं आपकी हिस्ट्री में नहीं जाता, आपको कम से कम हिंदू समाज का सम्मान करना चाहिए। बहुसंख्यक हिंदू समाज को जिस तरह से प्रताड़ित करने की और उसको आतंकवादी बताने की, भगवा आतंकवाद लाने की, और ये हिंदू को, सनातन को नेस्तनाबूद करने की, ये जो मानसिकता के साथ ये लोग खड़े हैं, लगातार गौ माता की हत्या करते हैं और कहते हैं हमें तो गौ मांस खाने का अधिकार है, कुछ भी खाएंगे। तो ये कोई कांग्रेस की कोई नई बात थोड़ी है बार बार। लेकिन अब जो गुजरात में जाकर के जिस तरह से इन्होंने अयोध्या के जो आंदोलन को जिस तरह से कलंकित करने की कोशिश की है, वो भी गलत है। और अभी ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सामने बोल रहे थे, तो बोलते समय ये अपना जवाब नहीं दे रहे थे, ये तो मीडिया को कोस रहे थे। आप देखिए कि जो लोग इनको समय देते हैं, इनकी बात को सुनते और सुनाते हैं, उन्हीं पर हमला करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता किसके से छुपी हुई है? मैं कहता हूँ अगर हिंदू समाज हिंसक क्या थोड़ा सा अगर उस राह पर चला भी जाता, तो आज मेरी ये बेटी जो है, हमारी ये बहन जो है नुपुर शर्मा, जिसने कहा जो था वो सत्य था, जो बाकायदा उनके ग्रंथों पर आधारित था, इसके बावजूद भी आज निर्वाचित जीवन जी रही है। क्यों भाई? ये क्यों होना चाहिए आखिरकार? इनको माफी मांगनी चाहिए कम से कम। इन जिहादियों के सामने जो है घुटने टेकने से ज्यादा बेटर है इनको कड़ा और करारा जवाब देना चाहिए था। और देखिए बात यह है कि इस देश के अंदर अगर इस मानसिकता को तुष्टीकरण कर दें तब तो ठीक, अगर किसी ने सच्चा बोल दिया। विनोद जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। That's all the time that we have on this conversation over here. Mr. Raj and Mr. Bansal, thank you so much for joining CNN News 18 and putting your perspective across. Right now, shifting